آپ سب کو میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں آر ایس ٹرسٹ، آر ایس فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ سیریس لیتے ہیں ہماری ورکشاپس کو. تو آج میں بیوٹیشین ورکشاپ بائی کرسٹین ڈکلیئر اوپن کرتی ہوں. بائی دا نیم آف آل مائٹی اللہ، دا موسٹ بینیفیشل اینڈ مرسیفل. اچھا، شروع کرنے سے پہلے ہمارا جو ورکشاپ ہے پراپر، آپ کو ہیلتھ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، کیوں ہے ہیلتھ اور بیوٹی کو ملا کر کے. آپ میں سے کتنے لوگ بیوٹیشین ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا. اوکے. اور ظاہر جو نئے ہیں وہ اس فیلڈ میں شاید آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ بیوٹی یعنی بیوٹی جو سیلون ہوتا ہے، آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بیوٹی کلینک کے طور پہ پہچانا جائے؟ بیوٹی کلینک زیادہ بہتر لگتا ہے نا، بیوٹی سیلون اینڈ کلینک. کیوں؟ کہ اس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے. سمپل یہ کہ دیکھیں، میک اپ کر لینا، ہیئر کٹ لے لینا، یہ تو ہے بیوٹیشین کا کام. مگر بیوٹیشین کا کام کیا چیز دینا ہے؟ سیلف گرومنگ بھی کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سیلف گرومنگ. دیکھیں، بال بنائے، بلو ڈرائی کیے یا اس کو اسٹائل بنا لیا آپ نے، مگر اس کے بعد کتنی دیر چلے گا؟ ایک دن میکسیمم، پھر وہی حالت ہو جائے گی. مگر جو گرومنگ ہوگی وہ آپ کی جیسے اسکن کیئر ہے، کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہائیجین میں کیا کیا؟ بیوٹی پارلر میں ایسی کون سی سروسز ہیں جو آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹ ہوتی ہیں؟ کلینزنگ، دیٹ از جو اسکن کلینزنگ ہے. اور یعنی کہ فیشیلز، فیشیل کو آپ سب سے پہلے اسٹریس ریلیو ہوتے ہیں، نہیں ہوتا ہے؟ مساج ہوتا ہے تو سیلف اسٹریس فری ہوتا ہے. پتہ نہیں کہ ہاؤس وائفس ہیں یا ورکنگ وومن ہیں، آپ لوگ کے پارلرز آتی ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑا سکون ملتا ہے. وہ می ٹائم ہوتا ہے ان کا. ہر ایک کو اپنا می ٹائم پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے لیے ٹائم. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے خود سے محبت کرنا سیکھیں، تبھی آپ دوسروں سے بھی محبت. یہ نہیں ہے صرف اپنے آپ سے بھی محبت کرو، وہ بھی سیلفش ہونے والی بات ہے. خود سے محبت کرے، دوسروں سے بھی محبت کرے، تو وہ می ٹائم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح آپ اسٹریس فری لائف گزارتے ہیں. تو فیشیل کو اگر آپ پروموٹ کرتے ہیں تو خالی یہ نہیں کہ جی آپ کے خالی گلو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. جو ہیلتھ ریلیٹڈ اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ کی بات کو زیادہ اہمیت دیں گے. دیکھو، اس کو میری ایک صحت کا بھی خیال ہے کہ جب بیوٹیشین مساج دے رہی ہوتی ہے، ہلکے ہاتھ جب فیشیل دے کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی اسٹیپس، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ پوچھتے جاتے ہیں، میم میرا پریشر صحیح ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ یہ بات ہے نا آپ کی جاب کا جو بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو کمفرٹ دے رہی ہیں، اور جب آپ کلین کر رہی ہیں ان کی، تو یہ ان کی ہائیجین ریلیٹ ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ ہائیجین ریلیٹ. اور ہائیجین کیا ہے؟ ہیلتھ ہے. اس کے بعد جب آپ میک اپ کرتے ہو تو انہانس کر رہے ہیں ان کی بیوٹی کو، ٹھیک ہے. اچھا، ہمیشہ جو میک اپ ہونا چاہیے، مجھے پتا ہے بہت زیادہ لاؤڈ ہونا چاہیے یا ایلیگنٹ ہونا چاہیے؟ ایلیگنٹ. یہ نہیں ہو کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا برائڈ ایسے بنا دی، دوسرے دن شوہر ہی بیچارہ نہیں پہچان رہا کہ یہ وہی تھی. برائٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے برائٹ کو ایسا تیار کیا، اس کے اپنے فیچرز ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ ہر انسان کے اپنے کلر کمپلیکشن ڈز ناٹ میٹر. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کا ڈارک کمپلیکشن ہے تو آپ اسے چٹا گورا کر دیں. نو، آپ کو اس کو نیچرل اس میں رکھیں، نیچرل اس میں رکھیں، اس سے انہانس. آپ نے ان کی جو بھی بیوٹی ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے ان کو، اس کو انہانس کرنا ہے. تو یہی آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، صحیح ہے نا. تو اس کے بعد کس طرح کے آپ کیا بن جائیں گے ہیلتھ کے حساب سے کہ جب آپ نے میک اپ کر لیا تو میک اپ ایسی رکھ کے چھوڑنا چاہیے؟ میک اپ کر کے ایسی جا کے سو جائیں یہ وہ نہیں.
यही अब आ गया हेल्थ का पॉइंट कि आपने उनको ये समझाना है कि जब आपने मेकअप को उसको उतारना है तो किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से, कि आपकी स्किन डैमेज ना हो, क्योंकि स्किन डैमेज होना भी तो एक हेल्थ के खिलाफ जाती है ना। इसके अलावा कौन सी सर्विसेज देते हैं? फुट केयर देते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, वो भी क्या है? हेल्थ। आपकी चीज को, आपकी बॉडी को बेहतर बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि स्टार्ट लें, हम वर्कशॉप्स तो कराते हैं ना कि ये चीज। सेकेंडली, जबकि मैं उसको कहती हूँ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखें आजकल के दौर में खासकर, वो ये है कि आप स्टेरिलाइज कर लें, रीयूज ना करें। ज़्यादातर आप कौन सी वाली चीज़ें यूज़ करें? डिस्पोजेबल। एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के ऊपर टूल्स यूज ना करें, उससे क्या हो जा सकता है? सबसे बड़ी बीमारी कौन सी हो सकती है? एक्नी, लाइफ थ्रेटनिंग, एड्स, एड्स। आपको बताऊं एक, हाँ जो भी है डेंटिस्ट, जो भी आप जहाँ टूल्स यूज कर रहे हैं, इट हैज टू बी स्टेरिलाइज। सेकेंडली, या तो डिस्पोजेबल चीजें यूज करें। एड्स कोई मामूली चीज नहीं है। एक तो देखें आपके कैरेक्टर में बात आ जाती है, ठीक है। एक प्ले आ चुका है, रिसेंटली भी आया था, फैसल कुरैशी का, कुछ वही साल भर हो गया होगा, और एक बहुत पहले आया था। मैं उसका आपको बताती चलूँ कि उसमें ये दिखाया था कि बहुत अच्छी फैमिली है, उनकी बेटी बहुत नमाजी, परहेजगार, और माँ भी बहुत परहेजगार, मगर जब उसकी शादी होती है तो पता चलता है उसको एड्स। उसका मियाँ उसको छोड़ देता है कि तुम गलत हो। अब ये माँ बेटियाँ दोनों बहुत परेशान कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। माँ को एकदम याद आता है कि बचपन में वो अपनी बेटी के कान छिदवाने गई थी। कितनी मामूली सी बात है, उन्होंने जो कान छिदवाए, क्योंकि पहले की अब आप देखें ना, अब नोज पियर्सिंग और ये जो होती है, अब वो रीयूज नहीं करते, एक ही का जो यूज हो रहा है उसी को करते। वो जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया था वो किसी एड वाले का किया था, तो सोचिए उस बच्ची के ऊपर उसके क्या असरात पड़े। इसी तरह मर्दों के लिए जो शेविंग का सामान वगैरह है, एक दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें, इस पर भी प्ले बन चुका है। कि सिर्फ रेजर यूज कर लिया था। स्पंजेस हैं, स्पंजेस प्लीज। मैं तो यकीन माने, मैं मैनिक्योर पेडिक्योर से बहुत अवॉइड करती हूँ पार्लर में। मैं आप सच बताऊँ, मैं कहती मैं घर पे करवा लूँ, अपने सामने हो, मुझे पता मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं। एक केस आया हुआ है ऑन द मीडिया, एक बच्ची लॉस्ट हर आईज लिटरली, उन्होंने जो आई पेंसिल यूज करी थी उसके ऊपर दैट हैड समथिंग इन इट एंड शी हैड बिकम सेमी ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। ओह माय गॉड। सब देखे ना, कहते ना जरा सी गफलत और जरा सी बदएहतियाती सेहत के लिए कितनी बड़ा आपको नुकसान, डैमेज दे देती है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे ना, तो आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो मजीद और आएंगे कि भाई दे आर कंसर्न अबाउट माई हेल्थ। आपको ऐसे, मैं हमेशा ब्यूटिशियंस को कहती हूँ, इतने साल हो गए मुझे वर्कशॉप कहते हैं, बी अ कंसल्टेंट, बी अ कंसल्टेंट, कि वो आपके रोहाना भाभी माशाल्लाह, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, आज हमने दुआ खैर भी एंड में रखा है उनके लिए। मेरा रोहाना भाभी से बहुत बचपन का साथ रहा है। रोहाना इकबाल को कौन कौन जानता है? कौन नहीं जानता, ठीक है। मुसरत बाजी, ये दोनों साथ ही डेवलप्स जी, लॉन्ग बैक। और हम लोग जो हैं सब छोटे छोटे से जब, हाँ, तो उनका मेरा बड़ा साथ रहा है मेरे हर प्रोग्राम में। भाभी रही हैं सास, she passed away a year ago almost. तो इंशाल्लाह एंजी मार्शल is coming just to give her respect and honor, क्योंकि फाबा उनके नाम से नीचा था। उन्होंने एक इंडस्ट्री पूरी बनाई है, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को सिखाया है। और सिर्फ यही बात नहीं है, भाभी की एक बात मैं देखती थी, जब भी मैं जाती थी तो वो कोई ना कोई मशवरा देती थी ज़रूर,
جو آپ کے فائدے کا ہوتا ہے. تو یعنی کہ وہ تو بہت بڑی بات ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ میں اب جو پروگرام کر رہی ہوں آج اینڈ میں ہم ان کے لیے دعائے خیر دعائے مغفرت بھی کریں گے. تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو بیوٹیشین کی فیلڈ ہے نا اس کو بڑا دیکھ بھال کے چلیں, ہیلتھ سے ریلیٹ کریں, اپنے آپ کو گرو کریں, کنسلٹنٹ کریں. کلینک بھابھی کا بھی بھابھیز بیوٹی کلینک کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتے چلوں گیا کہ کیا ہے بیوٹی سے ریلیٹڈ جو آپ دیکھیں بیوٹی کیئر کس کس چیز. میں نے اسکن کا کہا, کینسر بہت عام ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ معاف کرے, جیسے نزلہ زکام ہوتا ہے نا آج کل مجھے لگتا ہے ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی اس کا شکار ہے اور تکلیف میں ہے. اللہ پاک سب کو اپنی ایمان, اور وہ وہی والی بات ہے اسٹارٹ وتھ بہت ہی چھوٹی سی چیز سے ہو سکتا ہے. تو یہی آپ نے ایڈس کینسر اس سے بچانے کے لیے آپ نے خیال کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ایک آپ نے کیا کہنا ہے کہ سن اسکرین کیا ہوتی ہے. واٹ از سن اسکرین؟ ہاں, پروٹیکشن. اینڈ سن بلاک, just not sun. and sunblock, what is the difference between, Nazim آپ بتائیے, what is the difference between sunblock and sunscreen? Sunblock blocks your total thing, which is not very good also, because sun is needed by us. It's got what vitamin K in it, Vitamin D, yes. So sunscreen is better than sunblock. Sunscreen is any time better. We need sunscreen even inside us. Inside, yes. Because these lights are بہت زبردست بات دیکھیں یہاں سے بتائیے. آپ دیکھیں ہم سن بلاک لگا لیتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں جو سن کی روشنی ہے جس سے آپ کو وٹامن ڈی آپ کی ہڈیوں کو وہ مضبوط کرتا ہے, وہ تو اسے بلاک کر رہا ہے. مگر سن اسکرین کیا ہے, وہ پینیٹریٹ ہو جاتا ہے اس میں سے پروٹیکٹ کرتا ہے. مگر جو سن کا فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی میں جا رہا ہے. تو اس کو کومبو کہا ہے, اس لیے اس کا کیا ہے کمبینیشن کرنی کہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں. دین اچھا بیوٹی میں آپ کی سب سے زیادہ کیا ہے, آپ سب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں خوبصورت بنوں. سب لوگ چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ ہوتا ہے آپ جیسے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں اچھا نہ لگوں. آپ چاہتی ہیں اچھا نہیں لگوں؟ مشکل سے کوئی چاہے گا کہ میں اچھی نہ لگوں. ہر عورت, ایون مردوں کا ہوتا ہے, مگر عورت کے الگ اللہ پاک نے ایک رکھا ہے سنہار کا. تو ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ میں اچھی لگوں, اور اچھا لگنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف میک اپ کر لینا. گرومنگ ہے یہ آپ کا نیٹنیس, کلینلینس, صحیح سے بال بنے ہونا, آپ کے نیلز پراپر. دیکھیں میں ایک چیز کے بہت خلاف ہوں, آئی ڈونٹ نو آپ ہیں یا نہیں ہیں. نیلز جو بہت بڑھا کے لگتے ہیں, مجھے تو سوری ٹو سے لگتا ہے چڑیل. اب تک یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ بس نیلز بڑے ہیں, او مائی گاڈ, ناٹ ایٹ آل. آپ ابھی بھی میڈیا میں دیکھیں, مجھے ہر وہ آرٹسٹ اچھی لگتی ہے جس کی نیل کٹ ہوئی ہے, وہ ایک ڈیسنسی لگتی ہے. اس پہ بھی اگر وہ نیل کلر لگا لیتے ہیں تو بھی برے نہیں لگتے. مگر پتہ نہیں پہلے کی تھاٹس ہوتی ہوں گی جو لوگ, مگر آج کے دور میں نہیں. اگر آپ جائیں گے ایلیگنس لوگوں کو دیکھیں گے, آپ کا کلاس میں دیکھیں گے, ان کی کوشش ہوگی کہ ان کے نیلز باہر کے ملکوں میں کیا ہے کہ نیلز بہت بڑا بڑا کے تو نہیں لگتے, وہ تو عجیب ہے. پھر آتے بھی ہیں کبھی ٹیڑھے میڑھے, یہ وہ نا. آئی ایم سوری ٹو, مطلب آئی ڈونٹ نو میں آپ کی غلط, مگر جو چیز صحیح ہے میں نے بتانا چاہ رہی ہوں. تو یہ ضروری ہے, تھوڑا سا گروتھ ہے, اور اس کو وہ شارپن کر کے پراپر کر کے آپ کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. مگر لانگ نیلز بالکل بھی نہیں صحیح. تو آپ کو خوبصورت لگنا ہے. اب افیکٹ کیسے پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب اچھی طرح رہیں گے تو خود کے اندر ایک کیا ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا. کیا ہوتا ہے, آپ گھر میں ایسے بیٹھے ہیں, نائٹ سوٹ ہے یا ایسے جیسے گھر میں بیٹھا تھا اس وقت, اور جب گھر سے تیار ہوتے ہیں اس وقت میں, اس میں فرق آتا ہے یا نہیں؟ آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک تھوڑا سا کانفیڈنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک دم فیل ہوتا ہے کہ
तो उस आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, यू फील गुड. अच्छा, जैसे कि इवन द मोस्ट माइनर इम्प्रूवमेंट बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड द मूड, जैसे मैंने आपको बताया, छोटी से छोटी चीज में भी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है. जरूरी नहीं बहुत. अच्छा, ये लोग समझते हैं अगर हमने बहुत महंगा जोड़ा पहन लिया है तभी हमारी एक पर्सनैलिटी. सॉरी टू से, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मगर जब वो पहनते हैं ना तो उन पर जचता ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आम जोड़ा भी पहन लेते हैं, मगर जिस तरह वो कैरी करते हैं तो वो लगता है कि जैसे कि ओह माय गॉड कितना खूबसूरत ड्रेस है. तो वही वही बात है कि कहते हैं खाओ मन भाता, पहनो जग भाता. जो दूसरों को, और इवेंट के हिसाब से किस किस्म का इवेंट आप चाह रहे हैं अटेंड करने, उस हिसाब से आप करें और कैरी किस तरह करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, ब्यूटी केयर मेक यू कंफर्टेबल. वही वाली बात है, कॉन्फिडेंस आता है तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप लोगों से बड़ा कंफर्टेबल हो गए, बड़ा खुश मिजाजी से. वरना आप देखेंगे मेरे कपड़े शायद वो स्त्री नहीं हुए हुए तो थोड़ा सा आप वो होंगे, झिझकेंगे, आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे. तो इवन अगर आप चलो मेकअप नहीं किया, मगर आप अगर गए हैं और आपने क्या किया कि मुँह हाथ धोया अच्छे से, आपने ठीक ब्रश भी किया, हर चीज क्लीन की, मेकअप भी नहीं किया, तब भी आप फ्रेश होंगे. तो आप अब जैसे आई स्वेट अ लॉट, एक है मेरे अंदर, अब मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ जब मेरी स्वेटिंग माय गॉड. तो मुझसे कहते नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है. मैंने कहा यार इतना ज्यादा स्वेट होना बड़ी अच्छी बात नहीं, क्योंकि एक बंदा फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है. तो भाई एक कुदरती है, किसी के अंदर ज्यादा होता है. क्योंकि मैं इनहेरिट किया फादर से कि चिल्ड एसी में बैठ के हम स्वेट कर रहे होते. अच्छा, नेक्स्ट. अच्छा, ब्यूटी केयर रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ ड्राइनेस एंड इरिटेशन. वो कैसे? आपको मॉइस्चराइज मिल रहा है तो आपकी, अच्छा ड्राई स्किन अच्छी लगेगी नहीं ना, और फिर इरिटेट, अच्छा खुजली हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो इसको करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए कि आपकी स्किन डैमेज ना, तो क्या चीज यूज करवाएंगे आप? मॉइस्चराइजर्स और क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, ये सारी चीजें. बेस, यस, वेरी गुड. तो देखिए नाज़रीन कितने ज़बरदस्त आपको दे रही है, ये बहुत बड़ी माशाल्लाह एक्सपर्ट है हर मामले में. चीज़ें ये तो इन्होंने तो ज्वेलरी बनाया करती, ज़बरदस्त ज्वेलरी, ब्रांडिंग का, बहुत ज़बरदस्त. अच्छा, नेक्स्ट प्लीज. मैंने तो एक दिन किसी से कहा कि प्लीज आई कैन स्टार्ट गिविंग यू ऑल सम ग्रूमिंग क्लासेस. क्योंकि बताइए ब्यूटी के साथ ग्रूमिंग क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी है. पता है क्या? अच्छा, एक चीज और बता दीजिए. How you carry yourself. Even how you carry your purse. Yes. How you carry your even glasses. अब आप देखिए, खासकर क्लिफ्टन डिफेंस में मैंने देखा फुल फ्लेज्ड मेकअप है, सब कुछ है, हेयर डू है, पाँव पे आपकी नजर जाती है तो क्या होता है? गंदे पाँव. आपको पता है बंदे की पर्सनालिटी उसके पाँव से पता चलती है. जैसे औरत की घर में पर्सनालिटी उसकी किचन से पता चलती है, उसके वॉशरूम से पता चलती है कि वो कितनी सुघड़ है. इसी तरह से औरत और मर्द दोनों की पर्सनालिटी जो है सबसे पहले, और अमूमन एक साइकी है कि इंसान की कि उसकी पैरों पर नजर जाती है. तो आप ऊपर कर रहे, पता चल रहा है आपके पाँव एड़ियाँ फटी भी हो रही हैं, गंदी हो रही हैं. तो भी जरूरी नहीं है अगर हर रोज जाके अब जारे के बैठ जाएंगे, घर पे होता है, अब घर पे ले लें, वॉश करेंगे वो हो जाएगा. मैं कहती हूँ 5 दफा वजू कर लो, उसमें भी नहीं, हमारा हम तो कहते हैं जो सो लकी दैट वी आर बोर्न इन इस्लामिक फैमिली, जहाँ पे ये जो 5 वक्त का वजू है ना, यही हमारी बहुत बड़ी तहारत और बहुत बड़ा कहते हैं ना सफाई निस्फ़ ईमान है. वो हमें वैसे साफ सुथरा रख देता है, ठीक है ना. अच्छा, कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या है? अच्छा, कॉस्मेटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं मुझे बता, क्या डिफरेंस क्या कॉस्मेटोलॉजिस्ट में और एक ब्यूटिशियन में? जी प्लीज, आप कुछ कह रही हैं? अच्छा,
आप नाज़रीन आप भी बताएं जरा इनको कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ब्यूटिशियन में क्या फर्क होगा? Beautician is just beauty. ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट Cosmetologist is a person who goes inside your skin. इनसाइड, यानी कि वो आपको लाइक Tell you कि आज क्या आजकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो बहुत बहुत काम कर रहे हैं, जो कि वो भी अच्छा नहीं लगता वो कि aesthetic काम करते ये होंठ बना दिए बकौल नाज़रीन के वो बत्तख वाले हैं कि अच्छे लगे या ना लगे, बट जिसको देखो माय ये गॉड आपका फेस इतना गंदा कर देते हैं, इतनी उसकी जो आप बहुत से आर्टिस्ट क्या है प्रधान, they've forgotten that we are not man-made, we are him-made. handmade and he knows better कि what looks better on us. Exactly. You know, अल्लाह ने हमारी नाक आज सब उसने जो बनाई है ना Perfect. उसको तो ब्यूटी तो एनहांस कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं, मगर ये जो ये करना है ना ये सही नहीं है। लिफ्टिंग करा रहे हैं अपनी एजिंग के लिए, After effects बहुत बाद में पता लगे. अपनी एजिंग के लिए बहुत सी विटामिन्स आ जाती हैं, एजिंग के लिए और भी चीजें आ जाती हैं। आप ऑर्गेनिक पे चलें, बेशक. आप ऑर्गेनिक्स पे चलें। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट वैसे हेल्प क्या करता है कि आपको एक तो जैसे सनस्क्रीन का कि उसको हैबिट बना ले, मॉइस्चराइजर, ये सब वही चीजें हैं। नेक्स्ट प्लीज, सबसे जरूरी क्या है आप मुझे नींद। आपको अच्छा एक तो रात की नींद, आप दिन में 12 घंटे सोएंगे ना आप वैसे ही लेथार्जिक रहेंगे, मगर अगर आप रात के 6 घंटे या इवन 5 घंटे भी सो जाएंगे ना आप फ्रेश होंगे कि अल्लाह, क्योंकि देखिए रात को कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं बताएंगे? मेलाटोनिन, क्या होता है? मेलाटोनिन एक जो दवा भी आ गई है, कि जो लोग नहीं सो पाते या मेलाटोनिन उनका नहीं है या मे बी उनका काम का स्टाइल, कुछ लोगों के नाइट ड्यूटीज हैं और रात को नहीं सो पाते, यानी जिसको नींद नहीं आती उनको मेलाटोनिन दिया जाता है। क्योंकि एक तो हमारा अल्लाह पाक में कहती हूँ ना, हम जो इतने पैसे खर्च करते हैं, कभी आपने ये सोचा ये जो हम सांस ले रहे हैं ये कितनी बड़ी नेमत है? जब कोविड हुआ था तो इसके पैसे लगते थे सांस के लिए, आपको सांस लेने के लिए सिलेंडर्स यूज करना था। उस वक्त पता चला था कि हम कितनी बड़ी चीज अल्लाह ताला की शुक्र ही नहीं करते, ये जो सांस है मुफ्त की अल्लाह ताला हमें दे रहा है, ये पैसों से वो मिलती है या नहीं? तो अल्लाह पाक ने रात सोने के लिए बनाया है, दिन काम के लिए बनाया। आप रात की नींद जरूर लें। वैसे कहते हैं टोटल 8 से 9 घंटे स्लीप अगर लें, प्रॉपर स्लीप। अच्छा वो आप कैसे लेंगे? जब दिन भर आप अच्छे से काम कर लेंगे और थक जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगी। आजकल क्योंकि परेशानियां, डिप्रेशन, एंजाइटीज लोगों को इतनी है कि फिर वो या तो मेडिकेशंस पे चले जाते हैं, ठीक है ना, एंटी एंजाइटी वगैरह की चीज़ें ले लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने नींद अच्छी रहेगी, उससे आपकी स्किन भी अच्छी होगा, आपका माइंड भी फ्रेश होगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। स्ट्रेस रिडक्शन बता रहे। नेक्स्ट, अच्छा साउंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अच्छा तो साउंड न्यूट्रिशन से क्या मुराद है आपकी? इसमें में आप देखिएगा आपने क्या है, आपको पता है आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं ना, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, वो सेल्स की वजह से हमारी एजिंग हो रही होती है। कितने? गुड। अच्छा 4 ग्लासेस तक कितने लोग पीते हैं? 1 लीटर। 4 ग्लास कौन पीता है? कम पीते हैं। 8 से 10 ग्लासेस। अच्छा कभी क्या होता है कि आप सादा पानी नहीं पी पा रहे होते ज़्यादा, तो आप आपके लिक्विड फॉर्म में क्या क्या चीज़ आ रही है वो भी आपके वाटर इनटेक ही हो जाता है, ठीक है। मगर आपको 8 से 10 ग्लासेस, इसका मैं आपको बहुत अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी बेटी का बताऊंगी। मेरी बेटी बहुत उस वक्त हो गई मुश्किल से 15-16 साल की, 17 साल की इनफैक्ट। वो गाड़ी चला रही थी, घर के पास ही एक्सीडेंट हुआ, उसकी किडनी रप्चर हो गई, मेरी बेटी की किडनी रप्चर हो गई। अब पता है उसकी किडनी अल्लाह ने कैसे बचाई? क्योंकि वो पानी बहुत पीती थी, वो पानी बचपन से बहुत पीती थी। बल्कि हम कहते थे तो पानी की वो है, बस इसको पानी ही नजर आना चाहिए। अल्लाह ने वो डॉक्टर अभी भेजवी ने उसको ऑपरेट किया था, तो
वरना वो किडनी निकाल रहे थे। अब मुझे टेंशन था, बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादी उसकी होने वाली थी नेक्स्ट ईयर, तो मुझे यकीन कि किडनी कुछ भी हो, किडनी भी जाता है। अब यकीन मैंने डॉक्टर अदीम रिजवी साहब ने कहते हैं कि मेरा पहला केस है कि मैंने रप्चर किडनी को सिया और बिल्कुल ठीक किया, और उसकी सिर्फ एक रीज़न था, ये पानी बहुत पीती, जिससे इनकी किडनी बची। पानी प्लीज़ बहुत पीजिए, एक तो आपको वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज, वॉच योर वेट। हम क्या होता है कि जब बढ़ जाता है ना, तब परेशान होना शुरू होते हैं। हम कब परेशान होते हैं? जब हमारा वेट बहुत बढ़ जाता है ना, अरे बढ़ गया, अब जब बढ़ गया तो वो कम होना, कहते ना बढ़ तो तेजी से जाता है, मैं कम होने में बड़ी मुसीबत होती है। बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है जो नेचुरल होता है, जिनका नहीं बढ़ता। अदरवाइज तो आप समझ लीजिए बिल्कुल ऐसा है कि बस जो बढ़ गया तो उसको कम करना जो है ना कयामत है। एक तो दिल बहुत मारना पड़ता है चीज़ों के लिए, उसके बावजूद भी अगर कम नहीं होता है तो भी बंदा परेशान। तो आप पहले, और सबसे पहले वेट कहाँ बॉडी के किस पार्ट पे आता है? स्टमक, बेली। और ये जो बेली फैट है ये इतना स्टबन है, जिद्दी है। मुझे अभी नई चीज पता लगी, बेली फैट कम्स बिकॉज़ ऑफ फैटी लिवर, यू नेवर गेट योर लिवर चेक्ड। हाँ, आप LFT कहलाता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो आप एटलीस्ट साल में एक दफा जरूर करवा दिया करें, क्योंकि फैटी लिवर पता है क्या होता है? ठीक है ना, उससे ये कि आपको एक तो वो हेपेटाइटिस की जो आजकल बहुत ज्यादा चीजें हैं, C, B, ये सब है ना, उनको रूम दिखाना था सेटिंग का। अभी टेस्ट करा कर आई हूं, मुझे क्या ये बड़ फैटी लिवर मुझे पता ही नहीं, और जबकि यू आर वेरी स्लिम, बिल्कुल, और मैं कोई फैटी चीज खाती बिल्कुल। मेरा खुद फैटी लिवर था, मेरा वेट इतना बढ़ गया था और समझ नहीं आ रहा था कि वजन ये कितना जो बढ़ा है, क्या पता था फैटी लिवर है। तो पूरा उसका इलाज हुआ, तब जाके तो फिर हाँ मेरा भी फैटी लिवर बहुत तकलीफ दे होती थी। तो वो तो आप पहले ही देखें कि इन पार्ट्स पे मेरा अगर वजन बढ़ रहा है तो बिफोर इट्स गेट टू लेट, क्योंकि कहते हैं ना बीमारी को ज़्यादा बढ़ा के जब आप उसको करते हैं तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट भी उसी तरह करना पड़ता ज़्यादा। मगर आप शुरू में पकड़ लेते हैं ना, अच्छा बहुत से लोग डरते हैं, कहते हैं टेस्ट कराओ भाई ये ना आ जाए, टेस्ट कराऊंगा। देखिए आप ये सोचें टेस्ट कराऊंगा तो अल्लाह ने करे आ गया तो आप ट्रीट कर सकते हैं, और शुक्र है कि नहीं आया तो आप शुक्र कर सकते हैं अल्लाह का, खुद रिलैक्स हो जाएंगे। तो टेस्ट करवाने से ना घबराएं, सही। तो आपने अपने वेट को वॉच करना है, क्योंकि जो मोटापे से बीमारियां वो आपको पता है, हार्ट की बीमारी होती है, डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन होता है, 10,000 मोटापा जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मैं कहती हूँ बीमारियों की माँ है, सही है। अच्छा नेक्स्ट प्लीज। अच्छा नेचुरल लाइफस्टाइल, जैसे वो मैं आपको पहले ही बताती हूँ, कोशिश करें। अच्छा इस तरह कैसे होता है कि जैसे एलिवेटर है, आप एलिवेटर पे ना जाएं, तो मैं चलो सीढ़ियाँ चढ़ के चला जाता हूँ, अगर ज़्यादा हाइट नहीं है फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक जाना कोशिश करें, नहीं है तो उतर के चलो, उतरना आसान है, चढ़ने के लिए आप तो कोशिश ये करें हल्का फुल्का। गाड़ी पार्क की तो पता चलता है ड्राइवर जो है वो आपको मेन गेट पे छोड़ के गया और आप वहाँ से, अब कोई बात नहीं है वहीं पर थोड़ा सा मैं वॉक करके, तो लाइफ स्टाइल को ऐसा कर लिया अपना, तो थोड़ी बहुत इस तरह आपकी जो स्पेशली कभी कभी होता है कि आप पार्क या उधर वॉक के लिए नहीं जा पा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तो फूड का मैंने आपको बता ही दिया, ऑर्गेनिक फूड। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा ये उन चीज़ों का है जो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा मेडिटेशन, हमारी तो बेस्ट मेडिटेशन क्या है हम मुसलमानों के लिए? नमाज। हमें तो 5 वक्त क्या तहज्जुद में तो 6 टाइम होती है, श्राप पढ़ो तो 7 टाइम होता है। दैट इज या वो ये मेडिटेशन है। एक तो मेडिटेशन होती है आपने किया जिस मेडिटेशन का स्टाइल है, मगर हमें तो पूरी नमाज अल्लाह पाक ने मेडिटेशन बना दी। हम अपनी उस चीज को अगर करें फॉलो तो हमारे लिए तो बेहतरीन है। अच्छा एक चीज हम और क्या गलती करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन क्या है? खुद अपनी मर्जी से दवाएंगे, अच्छा ये है ये खा लेता हूँ, ये है तो बेकार, ठीक है। एक पेन किलर सिंपल है जैसे पैनाडोल है या जुकाम की हल्की, मगर उसको भी एक हद तक होना है, वरना कोई ज्यादा चीजें, आप डॉक्टर नहीं हैं,
उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो प्लीज सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। नेक्स्ट प्लीज, कैलोरीज। कैलोरीज को प्लीज मॉनिटर करना चाहिए, उसको एडजस्ट करना चाहिए। अब तो यूट्यूब पे और गूगल जाके इतना कुछ आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है, और कि हद नहीं। अब जेमिनाई से सवाल करो तो वो तो ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको बता देगा। तो कैलोरीज देखें कितनी है और कितनी लेनी है और कितनी एडजस्ट करनी है, तो एडजस्ट करके वो कैलोरीज जो मैंने वो चार्ट बताया ना, उस चार्ट में भी वो चीज़ें आपको उसी हिसाब से दी बताई गई। अच्छा कैलोरीज, अच्छा कैलोरीज देखें कि न्यूट्रिशन को देखते अच्छी चीज़ हो तो जिसके अंदर अच्छा ज़्यादा पक जाएगी ना जैसे वेजिटेबल को, उसकी सारी कैलोरीज या उसकी न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है। कोशिश करें रॉ खाने, या स्टीम कर लें, रॉ खा लें, या हल्का सा करें कि उसमें पूरी क्रिस्पी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक चार्ट है कि फूड इनटेक कितना है और आपने कितनी एनर्जी लेकर किस तरह से अपने कैलोरीज, कहते हैं 2000 से 2500 डेली कैलोरीज अगर आपने ली है तो उसको बर्न भी करो। अब आप पहले देखें कि 2 से 2500 में ये खा रहा हूँ, पूरा एक दिन का चार्ट बना दें और चेक करें कि इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी, बकायदा जितनी चीज़ ले रहे हैं, अगर एक स्लाइस ले रहे हैं तो लिखिए 1 स्लाइस इज इक्वल टू कितनी कैलोरीज, और फिर आप पूरे दिन का वो बना लें। पूरे दिन के बाद टोटल कर लेंगे इतना है। अगर समझो 2-2500 से ज़्यादा कैलोरीज में आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि फिर आपसे बर्न भी करना है। एटलीस्ट आपको 1000 कैलोरीज तो बर्न करना चाहिए। अब बर्न करने के आपको मैंने तरीके बता दी कि वॉक है। अच्छा सबसे ज़्यादा पता है कुकिंग में कैलोरीज बहुत होती हैं, जो कुकिंग करते हैं ना उनकी कैलोरीज, क्योंकि पसीना बहुत छूट रहा होता है, ये स्टेज चढ़ने में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो वो ये भी चेक करना है कि ज़्यादा कैलोरीज किस चीज़ में होती है, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन सारी चीज़ों में जो है कैलोरीज। देखिए आई थिंक सो दिस इज द लास्ट, चेक करिएगा प्लीज वाले। That's it. अच्छा ये पूरी आपको मैं जो स्लाइड्स है मैं भेज भी दूंगी, क्योंकि उसमें जो वाइटामिन्स बताइए कि जो वाइटामिन्स आपको फ्रूट्स वेजिटेबल लेने हैं तो कौन कौन से वेजिटेबल में जो आपके लिए ज़रूरत है, विटामिन के है, डी है, ई है, वो सब कुछ चीज़ें आपके लिए बनी उसमें लिखी हुई भी है कि ये खाने से आपको ये वाइटामिन्स। और मज़े की बात है जैसे स्पिनच है, स्पिनच में 1 नहीं 2-3 वाइटामिन्स मिल जाएंगे आपको। टोमेटोज हैं तो टोमेटोज में 2-3 मिल जाएंगी, तो ये चीज़ें अपने खाने में शामिल कर लें। तो आई होप कि आप बोर नहीं होंगे मेरी आज की थोड़ी सी 1 महीने का, क्योंकि ब्यूटिशियन वर्कशॉप है तो उससे इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, ब्यूटी एंड हेल्थ बता दो। और एकदम और जोर से इस बात का नजर आप आइए, आपकी